हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स बेसिक्स क्वेश्चन पेपर के, और जो एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई का ईयर 2025-2026 में, जो कि अगले मंथ ही आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और हो सकता है कुछ आपको यहाँ से कॉमन मिल जाए। तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इनको देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करें, और कोई डाउट हो तो मुझे पूछिए। तो सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि एक एक एमसीक्यू का 1 मार्क्स करके है। आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025 इज डैश। इफ 2024x plus 2025y equal to 1 or 2025x plus 2024y equal to -1, then x minus 1 is equal to what? तो ये आप प्रैक्टिस कीजिए। The number of polynomials having -2 and 5 as its zero is, आपको चूज करना है कोई भी ऑप्शन। Which of the following is not a quadratic equation? The value of x for which 2x, x plus 1, x plus 10 and 3x plus 2 are the three consecutive terms of an AP is, तो x का वैल्यू कितना होगा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, आपको वो लिखना होगा। उसके बाद if 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 50 equal to 25k, then what is the value of k? उसके बाद है आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का मिलेगा। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स cos 30 sin 30 cos 60 minus sin 60 is the coordinates of the point which is mirror image of the point -3 5 about x-axis। क्या if in triangle ABC and triangle DEF AB by EF equal to AC by DE, then they will be similar when, तो आपको चूज करना पड़ेगा। if triangle ABC is congruent triangle PQR, then the perimeter of the triangle PQR is, triangle ABC is similar to triangle PQR, तो perimeter of the triangle कितना होगा? साइड्स दे हैं आपको। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो, रेडियस r of the circle which crosses the sides of the triangle is कितना? Which one of the following is not equal to unity? ये आपको लिखना होगा। फिर आपका आ गया है स्टैटिस्टिक्स का। कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया है। द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास आपको लिखना होगा। That empirical relationship between the three measures of central tendency, be A medium equal to mode plus B mean, then 2B plus 3A कितना होगा? From an external point Q, the length of tangent to a circle is 12 centimeter and the distance of Q from the center of circle is 13 centimeter. The radius of circle is कितना? तो ये भी आपको करना पड़ेगा सर्कल के चैप्टर से। In the given figure, PA is a tangent from an external point P to a circle with center O and diameter AB. If angle POB is equal to 150 degree, 15 degree, then measure of angle APO is how much? फिर आते हैं क्वेश्चन 17. The circumferences of two circles are in the ratio 3:4. The ratio of their areas is कितना? An event is most likely to happen. Its probability is कितना? तो आप इनको सॉल्व कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। उसके बाद आपका आता है assertion और reason. Line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. Reason: if a line divides two sides of a triangle in the same ratio, then it is parallel to the third side. फिर आता है probability. Two coins are tossed simultaneously. Possible outcomes are two heads, one head, and one tail, two tails. Hence, the probability of getting two heads is 1/3. Probabilities of equally likely outcomes of an experiment are always equal. तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सा assertion करेक्ट है या कौन सा रीजन करेक्ट है, तो ये चूज करना पड़ेगा। अब आते हैं सेक्शन बी पे। शो दैट द नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ये तो आपको आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, और या फिर आप दूसरा कर सकते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन
22. Find the radius of the circle with center at origin if line L given by x plus y equal to 5 is tangent to the circle at point P. ये भी बहुत इजी है, आप लोग कर सकते हैं, सारे सर्कल के क्वेश्चंस हैं. 23. If the zeros of the quadratic polynomial x square plus a plus 1 x plus b are 2 and minus 3, then find the values of a and b. 24. Find the nature of roots of the quadratic equation x square plus 4x minus 3 root 2 equal to 0. 25. Evaluate 2 sin 30 tan 60 minus 3 cos square 60 sec square 30. Or if sin x equal to 7 by 25, where x is an acute angle, then find the value of sin x dot cos x into tan x plus cot x. सेक्शन सी में आते हैं, 3 नंबर का मार्क्स है. शो दैट रूट 2 माइनस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है. उसके बाद आते हैं स्टैटिस्टिक्स में, जहां आपको ढूंढना पड़ेगा फाइंड द मॉडल एग्रीकल्चर होल्डिंग्स ऑफ द विलेज. मॉडल, तो या फिर आप कर सकते हैं, यहाँ पे बोला है कि इफ द मीन ऑफ द फॉर मीन दे दिया है, आपको पी का वैल्यू निकालना है, जो कि क्लास इंटरवल के सेकंड रो में है, वो आपको चेक करना. फिर आ गया क्वाड्रिलेटरल का. क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर में सर्कल सर्कमस्क्राइब है. आपको शो करना है ए बी प्लस सी डी बाई ए डी प्लस बी सी इक्वल टू 1. तो ये मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन 29 काफी बड़ा है, तो ये भी आप कर सकते हैं. ये हमारे वो लीनियर इक्वेशन से लिया हुआ है, तो वो आप देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, या फिर लिख लीजिए, या फिर पॉज करके क्वेश्चन लिखिए और फिर मुझे बताइए ये इसका आंसर कितना है. या फिर आप ग्राफिकली भी कर सकते हैं. ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ग्राफिक करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी इजी रहता है. तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं. अब आते हैं फिर से क्वेश्चन 30. ट्राइगोनोमेट्री sin x minus cos x plus 1 into sec x minus tan x इक्वल टू sin x plus cos x minus 1. तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. फिर एपी में आते हैं. द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 5n स्क्वायर माइनस n. फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी. सेक्शन डी लॉन्ग आंसर्स है, 5 मार्क्स का है. प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो. ये कर सकते हैं. या फिर उसके बाद द न्यूमरेटर फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर इफ 2 is added to both of it numerator and denominator, then the sum of the new fraction and original fraction is 29 by third 20. Find the original fraction. या फिर आप दूसरा भी कर सकते हैं. A train covers a distance of 300 km at a uniform speed. If the speed of the train is increased by 5 km per hour, it takes 2 hours less in the journey. Find the original speed of the train. फिर आप 34 भी देख सकते हैं. ये ट्रिग्नोमेट्री का है, हाइट्स एंड डिस्टेंस के. मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ, आप लोग रीड कर लीजिए. या फिर दूसरा वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक एंगल ऑफ एलिवेशन का है. दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. 35 का है, सॉलिड टॉय का है. हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर वाला स्फीयर, हेमिस्फेयर राइट सर्कुलर कोन से लिया हुआ क्वेश्चन है. थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसके बाद सेक्शन ही केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं. तो मैं इसको पॉज कर रहा हूँ, आप लोग रीड कीजिए और पॉज करके क्वेश्चन समझिए, फिर इसका आंसर लिखिए. तो क्वेश्चन 37, क्वेश्चन 37 पढ़ लीजिए पॉज करके. फिर क्वेश्चन दिया हुआ है, एरिया ऑफ द सेक्टर, आर्क लेंथ निकालना पड़ेगा. उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग. क्वेश्चन 38 भी देख लीजिए आप लोग.
तो आप देख लीजिए क्वेश्चन, बस यही क्वेश्चंस हैं। स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग आंसर करके और फिर मुझे बताइए कि आपको कौन सा नहीं आया, किसका क्या आंसर आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स है, अगर आप बच्चों आप लोग सुन रहे हैं, एग्जाम पास में आ गया है, 17 तारीख को मैथ्स है, तो आप लोग प्रैक्टिस इसको सारे आंसर्स मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लीजिए। सब बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखिए ताकि मैं चेक कर पाऊँ किसका करेक्ट है, किसका राइट है, किसका रॉन्ग है। ओके बच्चों, तो मैं अभी यहीं पे वीडियो स्टॉप करता हूँ। थैंक यू बच्चों, कमेंट बॉक्स में सारे आंसर लिख के मुझे भेजो।